الحمدللہ کچھ دن پہلے امی بابا نے اپنا عمرہ کیا. میں بہت شکر گزار ہوں ایم ایکس ٹریولز LA برانچ کی، جنہوں نے سب کچھ ارینج کیا اور امی بابا کو عمرے پہ بھیجنا اتنا آسان کر دیا. اب یہ تمام ویلاگ امی نے بنائی ہے اور وہ آپ سے اپنا سارا عمرے کا ایکسپیرینس، اپنی ٹپس اور اپنی ساری سٹوریز آپ سے شیئر کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے. میں اس خوشی کے سفر میں آپ سب کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں. میں نے تیاریاں شروع کر دیں. سب سے پہلے سعودی گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق ہمیں پولیو ڈراپس لینے تھے، جس کے لیے ہم پروونشل گورنمنٹ کے کلینک میں کراچی کمپنی میں جو کہ واقع ہے وہاں گئے اور پولیو ڈراپس پیے. ان کی ہدایت کے مطابق ہمیں نادرا کے دفتر 2 دن کے بعد جانا تھا، اور وہاں باہر ان کے سٹالز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں، اور وہ آپ کا شناختی کارڈ لے کر آپ کو ایک پرنٹ آؤٹ نکال دیتے ہیں. یہ پرنٹ آؤٹ ہے جو کہ ثبوت ہے کہ ہم نے پولیو ڈراپس لے لیے. اس کے ساتھ ہی ایک یہ بھی کارڈ دیا جاتا ہے جس کو ہم دونوں چیزوں کو حفاظت سے رکھیں، اور پورے سال ہمیں اگر کہیں بھی ملک سے باہر جانا ہے تو یہ ہمارے بے حد کام آئے گا، اور 1 سال کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا. اس کے علاوہ دوسری چیز جو بہت ضروری تھی وہ میننجائٹس کا انجیکشن ہے. اس کو ہم نے خریدا، جو کہ بہت مشکل سے حاصل کیا، بہت ریئر ہے مارکیٹ میں، اور اس کو لے کر ہم پولی کلینک گئے، اور پولی کلینک میں جا کر جب انجیکشن لگ گیا تو انہوں نے ہمیں یہ کارڈ ایشو کیا. یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر انٹری ہے کہ ہم نے میننجائٹس کا ٹیکہ لگوا لیا ہے. اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں. ہمیں اپنے ٹکٹ، اپنی ہوٹلس کی بکنگ، ان کو نہ صرف اپنے فون پہ سیو کرنا ہے بلکہ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے. اپنی چیزیں، ٹریول کے جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، میں ہمیشہ ان کو ایک اس بیگ میں رکھتی ہوں، جو کہ اس کو پھر اپنے ہینڈ کیری میں رکھ لیتی ہوں. اور اس کے اندر میں ایک پین بھی رکھتی ہوں، اور اس کے علاوہ ایک ڈائری بھی رکھتی ہوں، تاکہ اگر مجھے کوئی بہت امپورٹنٹ چیز لکھنی ہو، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں میں پرانے اسکول آف تھاٹ کی ہوں، ہر کام میں لکھ کے کرتی ہوں. اس کے علاوہ جو ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ان دوائیوں کو ہم نے ضرور ساتھ لے کے جانا ہے اپنے سفر میں. لیکن جو بہت ضروری بات ہے کہ ڈاکٹر کا نسخہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ اگر کوئی سوال کیا جائے کہ فلانی کیا چیز آپ لے کے جا رہے ہیں تو ہم بتا سکیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہے. اب ایک بہت ہی، جو کہ میرے لیے مشکل تھا، لیکن ایم ایکس ٹریولز کے ساتھ سفر کر رہی ہوں تو عمر نے میری بہت مدد کی. اللہ پاک ان کو اس کی جزا دے، اور ان کے لیے بہت دعائیں ہیں. جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو ہمیں ریاض الجنہ جانے کے لیے ایک ایپ انسٹال کرنے کی ہدایت ہے. اس ایپ کو انسٹال کرنا، پھر اس کے بعد اس کو ایکٹیو کرنا، اس کے اندر ساری معلومات کو فل کرنا اور اپوائنٹمنٹ لینا، یہ سب میری بہت مدد کی عمر نے. اللہ پاک عمر تم لوگوں کو بہت عزت دے، بہت ترقی دے، اور مستقل میری مدد کریں. میں بھی انہیں فون کرتی ہوں اور وہ مجھے مستقل میری ہیلپ کرتے ہیں. انشاءاللہ اس اور تیاری میں جب میں پیکنگ کروں گی، جب میں آپ کو اپنے ساتھ رکھوں گی. آج میں عمرے پہ جانے کے لیے اپنی پیکنگ کر رہی ہوں، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں. سب سے پہلے
हमें ऐसा सूटकेस रखना है जो कि मुनासिब साइज का हो, उसको उठाना आसान हो और गाड़ी में रखना भी आसान। तो हमेशा मैं ये वाला साइज इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि मैं हर वक्त जुराबें पहनती हूँ तो मुझे 5-7 जुराबें हर वक्त चाहिए, तो मैंने बहुत सारे जोड़े सॉक्स के रखे। इसके अलावा सबसे पहले उम्रे का जोड़ा रखना है। इसके लिए कबाया, एक स्कार्फ, एक पजामा और एक शर्ट पाक साफ वाइट मैंने इसलिए रखा है कि ये बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं सबसे पहले रखी। जो मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि जब हम उम्रे के लिए हरम जाएं और तो ये टोपी है, इसको अगर हम पहने तो हमारे बाल, क्योंकि हमारे छोटे बाल हैं तो ये नज़र नहीं आते, और इसके ऊपर ये, इसको कुछ लोग मकना कहते हैं, और ये बहुत, मैं इसको ही प्रेफर करती हूँ। इससे होता है कि हम बाल बिल्कुल भी नहीं आते बाहर और हम बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, कोई चीज़ नज़र नहीं आती और पर्दा बहुत अच्छा सा कायम रहता है। इसके अलावा ये मैंने 2 रखे हैं, ये 2 टोपियाँ और ये 2 मकना रखे हैं। रूटीन का मैंने अपनी शर्ट्स और ट्राउजर्स रखे हैं जो कि सबके सब वॉशिंग वेयर हैं। 2 अबाया रखी हैं, एक मैं पहन के जाऊंगी और एक मेरी उम्रे की अबाया है। ये 2 अबाया रखी हैं। इसके अलावा मैंने स्कार्फ रखे हैं कुछ, जो बहुत ज़रूरी है वो काउंटर है जो कि हर वक्त मेरे पास होगा, मेरे हैंड बैग में होगा, जिसमें मैं पढ़ती रहूँगी, और उम्रे के लिए भी मैं इस पे जब तवाफ़ करूँगी तो चक्कर काउंट करूँ। ये मेरा यूटिलिटी बैग है, टॉयलेटरी बैग है। इसके अंदर मेरा शैम्पू है, मेरा टूथपेस्ट है, मेरा फेस वॉश है, टूथब्रश है, वाइट पेट्रोलियम जेली है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ रात के वक्त, क्योंकि मॉर्निंग में कोई क्रीम मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं कर सकते। ये इतर है, इतर मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि जब मैं हरम जाती हूँ, मस्जिद नबी जाती हूँ या खाने काबा, तो मैं गुस्ल करके इतर ज़रूर लगाऊँ। ये एक कैंची रखी है मैंने, जब हमारा इंशाल्लाह उम्रा कंप्लीट होगा तो बाल काटने के लिए इस्तेमाल हो। नेल कटर है, फाइलर है, ये सन ग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, और एक एक्स्ट्रा ऐनक रखी है ताकि मैं अगर खुदा न करे मेरी इस ऐनक को कुछ हो तो मैं दूसरी ऐनक इस्तेमाल। ये थैला रखा है जिसको मैं हरम में जाऊंगी तो मैं लेके जाऊंगी, और मैंने अपने चप्पल रखे, जॉगर्स में पहनती हूँ हर वक्त, लेकिन उसके अलावा ये वो चप्पल हैं जो कि बहुत लाइट वेट हैं। अगर मेरा दिल बाज़ दफ़ा होता है कि जॉगर नहीं पहनने तो मैं ये चप्पल पहन लेती हूँ, और ये बहुत लाइट वेट हैं, हल्के हैं, पाँव नहीं थकता इसके अंदर, और थैला भी काम आएगा। ये मेरा मेडिसिन्स के लिए पाउच है, सारी मेरी दवाइयाँ इसमें हैं, और इसकी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को मैं हैंड कैरी में रखूँगी। मुझे चाय की बहुत तलब होती है तो मैं अपना ख़ास टी बैग यूज़ करती हूँ, अगर होटल में अवेलेबल ना हो तो मैं अपना टी बैग और ये एवरीडे इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा जब मैं अपना हैंड कैरी पैक करूँगी तो आपसे शेयर करूँगी कि हमने अपने हैंड कैरी में क्या रखना है। अब हम तैयारी करें हैंड कैरी, यानी हैंड कैरी वो चीज़ जो हमें इमीडिएट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये नॉर्मल केबिन साइज़ मेरा हैंड कैरी है। इसके अंदर मैंने एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, अपने वीज़े, अपनी होटल की बुकिंग और अपने टिकट की एक कॉपी एक्स्ट्रा रख दी है इसकी जिप के अंदर। ये एक पाउच लेके मैं ज़रूर मेरे हाथ में होता है जब तक हम चेक इन करते हैं। इसके अंदर मेरे पासपोर्ट,
اور اس کے اندر وہی جو ہمیں ویزا دکھانا ہے، کہاں ٹھہریں گے وہ دکھانا ہے، اور ہمارے ای ٹکٹ کی ایک کاپی رکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے، جو میننجائٹس کا ہم نے انجیکشن لگوایا تھا، یہ اس کا پروف ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے پولیو ڈراپس لیے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ ہے، اور یہ دونوں کارڈ ہیں جو پولیو ڈراپس ہم نے لیے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جو کہ ہمیں چیک ان کرتے ہوئے اور جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے اس کے اوپر ضرورت ہوگی جب ہم مدینہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں ایک ڈائری ہمیشہ رکھتی ہوں جس میں مجھے کوئی نوٹس لکھنے ہوں، نام لکھنے ہوں، اور اس میں ایک نہیں دو پین رکھتی ہوں کہ اگر ایک کام کرنا چھوڑ دے تو دوسرا اویلیبل ہو۔ یہ ایک بیگ ہے جس کو میں ہینڈ کیری میں رکھوں گی، اور وہاں جب حرم جاؤں گی تو اس کو استعمال کروں گی۔ اس میں میں نے کچھ ٹیشو پیپر رکھے ہیں اور ماسک رکھے ہیں، اور یہ میں جب حرم جاؤں گی تو میں باہر اپنے ہوٹل سے تو اس کو لے کے جاؤں گی، اور ادروائز ایئرپورٹ جاتے ہوئے میں اپنا یہ پاؤچ اسی کے اندر رکھ دوں گی، اور بہت ہی کنوینئنٹ ہے، اس کو میں آسانی سے اس سلنگ بیگ کو میں ہر وقت سفر میں استعمال کرتی ہوں۔ اس میں 2 پاکٹس ادھر ہیں، یہ اینک کی جگہ ہے، یہ اس کے اندر کارڈ کی جگہ ہے، اور یہ ایک اندر بھی پاکٹ ہے۔ تو اس میں صرف ہوٹل کا کارڈ رکھیں تاکہ جب آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہو۔ اس میں لوکل کرنسی ہے، اور اس کے علاوہ اینک آ جائے گی، آپ کا فون آ جائے گا، اور آپ آرام سے اپنا یہ بھی رکھ سکتی ہیں اور یہ بھی رکھ سکتی ہیں۔ اس کو میں فی الحال ہینڈ کیری میں رکھتی ہوں۔ اس میں اپنی دعاؤں کی کتابیں بھی رکھتی ہوں، کیونکہ سوٹ کیس میں چپل ہے تو میں وہاں نہیں رکھ سکتی، تو اس ہینڈ کیری میں اپنی دعاؤں کی کتابیں رکھتی ہوں۔ یہ میں ٹرانسپیرنٹ بیگ یوں اس لیے رکھتی ہوں کہ اس کے اندر میرے فون کا چارجر، میرے گھڑی کا چارجر بہت ضروری ہے، کوئی پتہ نہیں کب ایک دم بند ہو جائے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ آپ بھی دعا کیجیے کہ میرا سفر بخیر ہو اور اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول کریں، اور آپ سب لوگ میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ ہاں جی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ایئرپورٹ پہ مطمئن بیٹھے ہیں؟ بات یہ ہے، پہلے بھی 2-4 عمرے کیے ہیں ہم نے، تو مطلب ہے کہ اس طرح زیادہ ریلیکس ہوں، کیونکہ جو کرا تو آپ نے پہلے بھی کبھی کچھ کام نہیں ہے، لیکن اس دفعہ آج میں زیادہ ریلیکس ہوں، کیونکہ اس لیے کہ ہماری ساری جو سردردی ہے وہاں کی، یہاں تو خیر 4 لوگ ہمیں جانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے گا، لیکن زیادہ فکر وہاں جا کے ہوتی ہے۔ تو ساری سردردی جو کہ MX ٹریول نے لے لی ہے، اس لیے میرا خیال ہے میں چہرے پہ میرے اطمینان ہے تھوڑا سا۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ عمر سکھیرا نے تو بہت ہی زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، اور بہت بس میں ان کے آپ ان کو اپنے لیے دعاؤں میں یاد جی میں رکھیں۔ ان کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی۔ would like to welcome you to Jeddah. السلام علیکم میم، ہم لوگ ہماری ٹرانسپورٹ کی ٹیم ہے پوری، ہم مور دین اراؤنڈ اباؤٹ 25 لوگ ہیں، 25 گاڑیاں ہیں، 25 ڈرائیورس ہیں۔ ہم جدہ سے پک اپ کرتے ہیں، جدہ سے مکہ لے کے جاتے ہیں، جدہ سے مدینہ لے کے جاتے ہیں، مکہ کی زیارات کرواتے ہیں، مدینہ کی زیارات، طائف کی زیارات کرواتے ہیں، پھر مکہ سے مدینہ لے کے جاتے ہیں، مدینہ سے مکہ لے کے آتے ہیں، مدینہ ایئرپورٹ سے مدینہ ہوٹل، اور مدینہ سے مدینہ ایئرپورٹ، یہ سب ہم ٹرانسپورٹ سروس دیتے ہیں، اور بیسٹ سروس دیتے ہیں کسٹمر کو ایز پر کسٹمر نیڈ۔ تو ہم انشاءاللہ بیسٹ سروس آپ کو، ہم جتنے بھی ڈرائیور ہیں ہم ایز اے گائیڈ بھی کام کرتے ہیں اور ایز اے ڈرائیور بھی، ہم لوگ خود ہی ٹرینڈ ہیں تو ہمیں سب کچھ پتا ہے، تو ہم کو لوگ سارا آپ کو ادھر کے بیک گراؤنڈ ہسٹری پتہ ہے جو آپ اور ہمارے پاس ایسے بھی ڈرائیور ہیں جیسے فارنر آ جاتے ہیں تو وہ اردو نہیں بول سکتے یا عربی نہیں بول سکتے، تو ہمارے پاس انگلش پراپر انگلش لینگویج کے بھی ڈرائیورز ہیں۔ کچھ ڈرائیور ہیں جو عربی بولتے ہیں جیسے مصر سے یا ایسے ممالک جو عرب ممالک سے آتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے پاس عربی ڈرائیور بھی موجود ہیں۔ چلیے بہت شکریہ۔
तो ये वसीम बहुत ही हेल्पफुल है। अब इन्होंने हमें ब्रेक दी है रास्ते में कि अब हम अलबैक में लंच करें, तो आ जाए। ये एहराम है MX वालों की तरफ से कि ये पहन मर्दाना। बहुत अच्छा कमरा और इलेक्ट्रिक केटल और बहुत अच्छा व्यू है इधर से। अच्छी जगह है। अभी हम जब जाएंगे तो देखेंगे कि कितनी दूर है हरम से। साफ सुथरा वॉशरूम है, बहुत अच्छा। वेरी हमारा होटल जो है मस्जिद नबवी से हार्डली अगर हम टहल के जाएं तो 5 मिनट्स, अदरवाइज तेज से जाएं तो मेरे ख्याल में 3 मिनट। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। बहुत और वैसे भी जगह सेफ है, आप आराम से मस्जिद हर नमाज में जा सकते। अस्सलामुअलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत, माशाअल्लाह। ओह माय गॉड, फ्लोर पे नाश्ता है। मेरा ख्याल है कि दुनिया जहाँ की चीज़ें और सभी थक के रोगे से है, दिन खा रहे थे कुछ अच्छा सा खाना। खुदाया, बीफ के पाए भी आपको यहाँ मिलेंगे, वेरी नाइस। बहुत अच्छी सफाई, बहुत कुछ खाने को।
जन्नतुल बकी है। यहाँ पे औरतों को तो जाने की इजाज़त नहीं, लेकिन मर्द हजरात सुबह फजर के बाद और असर के बाद उनके लिए इसका दरवाज़ा खुलता है और वो जा सकते हैं। रिवायात है और लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि बहुत पुराना कब्रिस्तान है ये। यहाँ पे बहुत आइमा, बहुत मासूमीन, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ मदफून। बस जाहिर है क्या कह सकती हूँ, इजाजत नहीं, बस आप यहीं से ही खड़े रह ज़ियारत कर लें और सलाम पेश। ये सब लोग हैं जो जा रहे हैं और इतना रश है, वो लोग हैं जिनको परमिट मिला है वो लाइन में। एक घंटे के इंतजार के बाद अब शुक्र नमाज पढ़ने से शुक्र शुक्र बहुत शुक्रगुजार या रसूल, बहुत शुक्रगुजार जिस काबिल किया जितने लोगों ने मुझे दुआएं की सब कबूल सबके मैंने जनाबे रसूल खुदा के रोज़े के पास मैंने आप सबके लिए बहुत दुआएं की कि परवरदिगार मेरी दुआओं कबूलियत बख्श दो। मौजूद हैं ओहद के मकाम पर, ठीक है। आप ये जितना ये पहाड़ देख रहे हैं ये सारा जबल ओहद है। जबल कहते हैं पहाड़ को, ठीक है। ओहद इस पहाड़ का नाम है। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें ओहद से और ओहद से और ये जन्नत में हमारे साथ है। इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द हेवन। ऐसे ही जैसे रियादुल जन्ना जो है वो जन्नत का पहाड़, ठीक है। और ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये जो छोटी सी, इसका नाम है जबल रमा। रमा मीन्स थ्रो, फेंकना, ठीक है। जैसे कि हज के अंदर आपने सुना होगा रमी, जो शैतान को कंकरियां मारता है, तो ये इसका नाम है जबल रमा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो जब गज़वा ओहद हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 50 तीर अंदाज इस पर प्लेस्ड किए, ठीक है। और उन्हें हुक्म दिया कि मेरे अगले हुक्म तक ये जगह नहीं छोड़ना, ठीक है। और फिर जो है वो जंग हुई और काफ़ी यानी कि कुफार जो है वो यहाँ पर थे, आपके इस मकाम पर, ठीक है। यहाँ पर जो है वो तीर अंदाज थे, ठीक है। और जब जंग हुई तो मुसलमानों को शुरू में काफ़ी यानी कि गलबा उस तरफ से मुसलमान बिल्कुल यहाँ पर ये बेसिकली ये पूरा प्लेस जो है वो बैटल फील्ड थी, ठीक है। और असल यानी कि यही वो मकाम था। तो जो है वो मुसलमानों को शुरू में काफ़ी गलबा हासिल हो गया था कि कुफार जो है वो भागने पर मजबूर हो गए थे, ठीक है। तो मुसलमान जब आगे बढ़ रहे थे, कुफार भाग रहे थे, तो जो ऊपर जो सहाबा कराम खड़े थे उन्हें ऐसा लगा कि जंग जो है वो खत्म हो गई है, हम जीत गए, ठीक है। शुएब बता रहे थे जंगे, तो उन्हें ऐसा लगा कि हम जंग जो है वो जीत गए। और कुछ सहाबा कराम जो है वो उसमें से
बल्कि ज़्यादा यानी कि अगर हम कहें 50 में से यानी कि कुछ सहाबा कराम नीचे उतर आए और कुछ ही ऊपर रह गए थे, ठीक है। वो माल गनीमत समेटने के लिए, क्योंकि हर जंग के बाद जितनी स्वॉर्ड्स शील्ड ये जितना भी वो रह जाता था वो सारा माल गनीमत का आता। तो वो माल गनीमत जो है उस पर जितने गाजी सहाबा कराम थे या जितने गाजी थे उनका हक होता था और वो जो है उसे कभी भी ले सकते थे। तो सहाबा कराम ने देखा कि कुफार भाग रहे हैं तो वो फौरन जो है वो माल गनीमत के लिए नीचे आए कि वो सारा कलेक्ट कर लें और जिसके हाथ में जो आएगा वो उसका होता था उस वक्त ना। तो ये जो है वो हम मुगालता कह रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि हम जंग जीत गए और जंग ख़त्म हो गई है, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटी देखी हज़रत खालिद बिन वलीद जो कि उस वक्त जो है वो इस्लाम में नहीं थे और कुफार की कमांड कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों ने बड़ा ही बेनिफिशियल जो है वो मौका और मकाम जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। और तो उन्होंने जब ये अपॉर्चुनिटी देखी तो वो वहाँ से आए, ठीक है, इस पहाड़ी के पीछे और पीछे से जो है वो दोबारा उन्होंने हमला किया, ठीक है। जब उन्होंने फुल फोर्स से जब हमला किया तो ऊपर जो है वो सिर्फ चंद सहाबा कराम रह गए थे 13 जो इसको पूरे को डिफेंड कर रहे थे, जो कि नहीं सही मायनों में कर पा रहे थे। जब उन्होंने यहाँ से हमला किया तो मुसलमान जो है वो जाहिर है वो रेडी नहीं थे, वो सिर्फ माल गनीमत समेटने में लगे थे। तो जब कुफार भाग रहे थे उन्होंने जब ये देखा कि खालिद बिन वलीद ने जो है वो पीछे से हमला कर दिया और जो है वो अच्छी फोर्स से हमला किया, तो जो भाग रहे थे कुफार वो दोबारा रिटर्न हुए, ठीक है। अब जब वो रिटर्न हुआ तो मुसलमान जो है वो बीच में आ गए और ये दोनों कुफार के ग्रुप बिल्कुल साइडों पे थे। तो इसके अंदर यानी कि काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी यानी कि दे वर लाइक सैंडविच बिटवीन दिस टू ग्रुप। कह दिया था कि मेरे अगले हुक्म तक जो है वो ये जगह नहीं छोड़ना। तो इट्स मीन के मतलब वर्ड टू वर्ड यानी कि चीज़ों को फॉलो करना कितना जरूरी है। एक तरह के करीब जो है ये कंप्लीट हुई, काफ़ी यानी कि साइकिलिंग वगैरह ये तकरीबन 1-1.5 साल हुआ। ये बाईसाइकिल्स वगैरह यहाँ पर जो है वो लगाई गई है। ये रेंट में जो है वो हम दे सकते हैं थ्रू करीम एप्लीकेशन। बाकी ये सारी अभी शॉप जो है वो इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये मैक्सिमम 1.5 से 2 साल पुरानी यानी कि ये सारी शॉप। हाँ, जब हम आए थे कुछ अर्से पहले, 4 साल पहले, तो ये नहीं थी जी एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर जो है पहले बहुत छोटी सी मस्जिद हुआ करती थी और ये फिर बाद में सऊदी गवर्नमेंट में सऊदी गवर्नमेंट ने तकरीबन 2016-17 के अंदर जो है वो इसको बनाया। ये बहुत ही खूबसूरत। अभी हम लोग हाँ जी शुएब, हम किधर आए हैं आप? जी अभी हम लोग मौजूद हैं मस्जिद किबलतैन में। किबलतैन मतलब 2 किबले वाली मस्जिद। किबला इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शन को और अरबी में किबला किबला, ठीक है। और इसके बारे में है कि पहले मुसलमान यानी कि जब इस्लाम आया तो मुसलमान जो है मस्जिद अक्सा की जानिब चेहरा करके नमाज अदा करते थे, ठीक है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यहूदी और ईसाई वगैरह जो है वो आते थे और वो ये यानी कि ताना कसते थे बाज़ औक़ात कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अस, कि आप भी जो है वो जेरूसलम की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी भी तमाम इबादत जो है वो उसी तरफ चेहरा करके होती है, वो सारी मकामात की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कहीं ना कहीं जो है ये ख्वाहिश थी कि हमारा चेहरा, हमारा जो है वो किबला तब्दील होना चाहिए और वो मस्जिद अक्सा से काबतुल्लाह शरीफ जो है वो होना चाहिए। फिर एक मरतबा एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मौजूद थे और नमाज असर की जो है वो क़यादत फरमा रहे थे, इमामत फरमा रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो है वो भेजा गया इस पैगाम के साथ कि आप अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज फरमाएं, यानी कि मस्जिद अक्सा से मस्जिद काबतुल्लाह शरीफ यानी कि मस्जिद हरम की तरफ जो है वो डायरेक्शन की जाए। तो अभी जो है वो 2 रकातें हुई थी, बाद जमात नमाज हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे थे। सिर्फ 2 रकातें जो है वो गुजरी थी और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह पाक का पैगाम लेकर आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमीडिएटली जो है वो उस पैगाम पर अमल किया, ठीक है। और फ़ौरन जो है वो अपना चेहरा, अपना जो है वो किबले की सिमत जो है वो चेंज की, नमाज पढ़ने के दौरान नमाज ही बिल्कुल जो है वो चेंज की। बिल्कुल 2 रकात के बाद दौरान नमाज मस्जिद अक्सा से काबतुल्लाह शरीफ की तरफ जो है वो उन्होंने चेहरा किया और बाकी की नमाज फिर अदा की गई। तो वो तकरीबन जो है वो 180 डिग्री का पूरा बनता है कि पूरा जो है वो पहले मस्जिद अक्सा थे और फिर पूरे घूमकर काबतुल्लाह शरीफ की तरफ जो है वो चेहरा हो गया उनका। ठीक। आज भी जो है वो मर्दों के सेक्शन के अंदर इन्होंने एक
ایک سائن لگایا, ایک نشانی لگائی, ایک مسلح لگایا کہ جہاں سے پتہ لگتا ہے کہ پہلے قبلہ کس طرف تھا اور اب جو ہے وہ قبلہ کس طرف ہے. تو عورتوں کی طرف نہیں ہے کہ عورتوں کی ہمیں طرف جو ہے یہ نشانی نہیں ہے, لیکن اگر آپ وہاں پہ پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گی کہ کیا ہے کیا کہ ہے. پہلے کدھر تھا اور اب بالکل کیسے. ایسا ہی ہے. ویسے ابھی یہاں سے ہمیں نظر نہیں آئے گا کہ اس کے جو ہے وہ 2 گنبد آلریڈی بنے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مینار ہے, مینار کے ساتھ ایک گنبد ہے, یہ مسجد اقصیٰ والی سائڈ ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور ایک جو ہے وہ دوسرا جو گنبد ہے وہ ابھی ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا, وہ ہے کعبۃ اللہ شریف کی طرف. ٹھیک. اور اس کا سب سے بڑا اس مسجد کا جو میں کہتا ہوں کہ معجزہ یا اللہ پاک کا جو ہے وہ کرشمہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس گنبد پر جو ہے وہ کبوتر نہیں ہوں گے. مسجد اقصیٰ والے ہمیشہ جو ہے وہ دوسرے والے گنبد پر خانہ کعبہ والے پہ. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ڈائریکشن ہاں اچھا. ابھی ہمارا کوئک سا میرا سوال ہے شعیب, ہم پک ہمیں کیا تھا وسیم صاحب نے اور انہوں نے اپنی بتایا کہ وہ لوگ کیا کیا ٹیم ورک ہے, تو میں بڑی امپریس ہوں, تم لوگوں کو بڑی ہسٹری پتہ ہے. تو کیا تم لوگوں نے اس کی کوئی تمہیں ٹریننگ دی گئی ہے یا تم نے پڑھا ہے, کیا ہے؟ اصل میں میم ہمارے جب گروپس ہوتے ہیں, ایم ایکس ٹریول کے جب گروپ ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ امام جو ہوتے ہیں, شیخ جو ہوتے ہیں, وہ انہیں ہم انوائٹ کرتے ہیں گروپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ امام ہے, عالم دین ہے, مفتی کرام ہے, تو انہیں جو ہے وہ اسلام کی کافی زیادہ نالج ہے. جب وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں, گروپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں یہ تمام مقامات کی بڑی ڈیٹیل زیارتیں کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, پوری ہسٹری کے ساتھ ایک ایک مقام کی جو ہے وہ ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں. تو ماشاءاللہ میں کافی عرصے سے جو ہے وہ ایم ایکس ٹریول کے ساتھ جس طریقے سے میں جڑا ہوں, تو میں نے کافی جو ہے وہ گروپس دیکھے ہیں اور کافی یعنی کہ اماموں سے جو ہے وہ ملاقات کی ہیں, ان سے کافی کچھ سیکھا. اور یہ تمام جتنی بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے, یہ تمام جو ہے وہ تمام یہ بھی تو آپ کے فرائض اور ذمہ داری ہو جاتی نا کہ اگر آپ کسی کو کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں تو بہت اوتھینٹک ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو میں نے جو ہے وہ اماموں سے سنا ہے یا جو شیخ کرام سے جو سنا ہے, جو مفتی کرام سے جو میں نے سنا ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ وہی میں آگے جو ہے وہ بتاؤں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز سنائی ہوتی ہے تو وہ میں ایٹ لیسٹ بریف کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے سنا ہے. دس از ناٹ اوتھینٹک بٹ آئی جسٹ لسن اٹ سم ادر سورس. کیونکہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو بھی ہمیں ابھی تک ملا ایم ایکس ٹریول کا نمائندہ, تو وہ فلی ٹرینڈ ہے, اس سے کوئی معلومات لے لو, کوئی ہسٹری لے لو, تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور آئی ایم ریئلی امپریسڈ, اور میں چاہتی ہوں کہ یہ سب کو پتہ چلے کہ جو بھی کوئی یہاں آتا ہے کہ اس کو ہر قسم کی معلومات آپ لوگ فراہم کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. السلام علیکم جی. ابھی ہم لوگ موجود ہیں غزوہ خندق کے مقام پر, جہاں پر غزوہ خندق جو ہے وہ لڑی گئی. خندق کا وہی مقام ہے جہاں پر ٹرینچ کھودی گئی تھی, جو خندق جو ہے وہ کھودی گئی. یہاں پر جو ہے وہ اس مقام کو سبا مساجد بھی کہتے ہیں. یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں, یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا, یہ بس کے پیچھے اوپر کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مسجد تعمیر کی گئی. پھر یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں, یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا, تو یہاں پر مسجد تعمیر کی گئی. 3 مساجد کو جو ہے وہ ڈیمالش کر کے یہ ایک بڑی مسجد بنائی گئی جس کا نام جامع خندق ہے. اس طرف حضرت عمر فاروق, حضرت علی, حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مساجد جو ہے وہ تعمیر کرائی گئی. تو یہ سارا وہ مقام ہے. اور یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں نے بغیر لڑے فتح میں نصیب ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس میں مدد شامل ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے خیمے سے نکل کر مسلمانوں کی جو ہے وہ وکٹری کا اعلان کیا, فتح کا اعلان کیا. کہ یہ وہ مقام ہے. اس خندق کا جو مشورہ تھا یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب ہم اس وقت پہنچے ہیں مسجد قباء, جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. تو شعیب آپ اس کا بتاتے ہیں ہسٹری. جی. اچھا میم, ابھی ہم لوگ موجود ہیں مسجد قباء میں, ٹھیک ہے, جو کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر مدینہ تشریف لائے تو اس مقام پر 2 یا 3 دن جو ہے وہ انہوں نے اسٹے کیا. اور اسٹے کی وجہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنا, کیونکہ حضرت علی اس وقت جو ہے وہ مکہ میں موجود ہیں.
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उनका इंतज़ार किया यहाँ पर। जब वो आ गए तो यहाँ पर तमाम सहाबा किराम के साथ फिर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंट्री की। हाँ जी, हम किधर हैं शुएब? ये अच्छा क्या मैम, अभी हम लोग मौजूद हैं बीरे गर्ज पे। बीर कहते हैं कुएं को, और गर्ज जो है वो इस कुएं का नाम है। ठीक है, इसके बारे में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें इस कुएं से जो है मोहब्बत है। ठीक है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वसीयत की गई कि मेरे विसाल के बाद इस कुएं के पानी से जो है मुझे गुस्ल दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अक्सर इस मकाम पर आया करते थे और जो है इस कुएं का पानी जो है वो पिया करते थे। इस कुएं का पानी उस दौरान काफ़ी मीठा हुआ करता था। ठीक है, आज भी जो है ये कुआं वर्किंग हालत में। अभी कुछ हफ्तों पहले ही जो है इसको रेनोवेट किया गया, सारा जो इसको रेनोवेट किया है। अच्छा, इसकी टाइमिंग्स है 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर में स्कूल है और ज़्यादा रश ना लग जाए, बसेस वगैरह ना हो, तो इस वजह से जो है इसको 2 बजे तक क्लोज़ किया जाता है। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है उसके बाद इसको ओपन किया जाता है। इसका पानी जो है वो आज भी आप लोग पी सकते हैं। यहाँ पर साइड में जो है वो नल वगैरह लगाए हुए हैं, उन्होंने सबील लगाई है। ठीक है, यहाँ से अक्सर हुज्जाज कराम जो है वो पानी भरते हैं, ले जाते हैं। और ये अच्छा, यानी कि कोशिश करें कि अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो एटलीस्ट एक मरतबा इसका पानी भर। और अगर टाइम ना पी सके तो फिर मक्का जाके जमा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हाँ जी, हम आए हैं जनाब सलमान फारसी के बाग में। जी, इस अब बात के बारे इसकी में क्या हिस्ट्री है? सही। ओके, अच्छा मैम, अभी हम लोग मौजूद हैं हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाग में। ठीक है, जब हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्योंकि फारिस के रहने वाले थे, यहाँ पर जब अरब में दाखिल हुए तो उन्हें धोखे से पकड़कर एक यहूदी को बेच दिया गया था। ये बेसिकली ये सारी जगह जो है उस यहूदी की थी। यहाँ पर उसका बाग हुआ करता था, तो यहूदी जो है वो यहाँ पर उनसे काम कराया करता था, काफ़ी काम लिया करता था। जब हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके यहाँ पर आए हैं कुबा की तरफ, तो उन्हें जो है वो पता लगा कि एक शख्स है जो अपने आप को रसूल कहते हैं, और उन्हें हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुछ निशानियाँ बताती हैं एक सच्चे नबी की। तो वो जब वहाँ गए, उन्होंने तमाम वो सारी निशानियाँ देखी और फिर बड़े करीब हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अपने आका से अपनी आज़ादी की बात करो। ठीक है, फिर हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफ़ी जो है वो अजीब से हालत में हो गए। उन्होंने कहा कि मैं कैसे बात कर सकता हूँ कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बात करो, अपने आका से अपनी आज़ादी की बात करो। तो फिर उन्होंने अपने आका से बात की, तो उन्होंने कंडीशन रखी कि मुझे जो है वो एक मिकदार उन्होंने सोने की बताई कि मुझे इतने मिकदार में जो है वो सोना चाहिए, और ये जो मेरा बाग है इसके अंदर 300 नए खजूर के दरख्त लगाए जाएँ। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से ग्रो करें और उसके बाद वो फल दें, तब मैं जो है वो तुम्हें आज़ाद करूँगा। तो काफ़ी मायूसी सी सूरत हाल थी, वो काफ़ी मायूस हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, सारा माजरा बताया कि ये मामला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया कि जाके उसकी शर्तें कबूल कर लें। ठीक है, फिर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम को हुक्म दिया कि अपने भाई सलमान की मदद करो। ठीक, तो कोई सहाबा कराम जो है वो 2 पौधे लेकर आए, कोई 3, कोई 5, कोई 10, इस तरीके से करके 300 पौधे जो है वो जमा किए गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पौधे जमा हो जाएं तो उसे अभी लगाना मत और मुझे बताना। जब जमा हो गए, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बताया गया कि ये पौधे जो है वो जमा हो चुके हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपने हाथ मुबारक से जो है वो तमाम पौधे लगाए। ये वही पौधे हैं जो ये दरख्त हैं? नहीं, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये जो दरख्त है इसकी मुद्दत जो है कुल, यानी कि जो इसकी एज होती है ये तकरीबन 16-17 साल के करीब होती है। ठीक है, वैसे जो जिसमें ये फल देता है। ठीक है, फिर क्या है कि उसे काट के जो है वो नए लगा लिए जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये दरख्त देखें काटे गए हैं यहाँ पे, वो पड़े हैं। ठीक है, इस तरीके से। वैसे जो इसको फल देने के अंदर अगर नया दरख्त लगाएंगे, किसी ने नया दरख्त, तो इसको ग्रो होने में एटलीस्ट जो है वो 4 से 5 साल लगेगा। ये नया ठीक है, ये ग्रो होगा, उसके बाद ये फल देगा, तो तकरीबन 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो ये सारे वो है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से जो है इस ज़मीन में पौधे लगाए। ठीक है, कुछ रिवायतों में है कि रातों रात ये पूरा बाग जो है वो वजूद में आया। ठीक है, लेकिन कुछ का कहना है कि क्योंकि इसको फल देने में कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की जो है वो शान है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक लगने से
उसी साल ये सारे दरख्त जो है वो पूरी तरीके से ग्रो हुए और उन्होंने फल दिया। वाह, ठीक है, कुछ कहते हैं कि रातों रात दिया, ये अल्लाह पाक जो है वो बेहतर जानते हैं, ये मुख्तलिफ यानी कि रिवायात हैं। तो इस तरीके से फिर जब ये माजरा यहूदी ने देखा तो उन्होंने जो है वो ये सारी जितनी मलकियत थी इस बाग की तमाम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे दी कि वो इस बाग के मालिक बन गए। और आज भी ये बाग जो है फिर उन्हीं के नाम से मशहूर है। और वो जो यहूदी मास्टर थे वो फिर बाद में इस्लाम में आ गए। वाह, सुभान। अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ 15 शबान और जुमे का मुबारक दिन है। दिल की बहुत ही अजीब व गरीब कैफियत है, खुश भी है और उदास भी। खुश इसलिए कि अल्लाह ताला ने आज जुमे के मुबारक दिन जुमा पढ़ने की इस मुतबर्रिक जगह नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। उदास इसलिए कि आज हमारा आखिरी दिन है और कल हम फजर पढ़ के इंशाअल्लाह एहराम पहन के मक्का की तरफ रवाना होंगे। हम से बगैर किसी फिक्र के, किसी मुश्किल के मैंने और मेरे हस्बैंड ने मदीने में दिन गुजारे, क्योंकि MX ट्रेवल्स ने हमें करीब तरीन जगह ठहराया और उनकी जो यहाँ टीम है बहुत ही एफिशिएंट है। उन्होंने हमें ज़ियारत करवाई, बेहतरीन गाइड दिया। जो बच्चा उसने हमें एक हिस्ट्री बताई। जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताई मुख्तलिफ मकामात की और बहुत बहुत हमारी मालूमात में इजाफा किया। मैं आप सबको चाहूँगी कि आप अपने माँ बाप को उनके साथ भेजें और बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आप यकीन करें कि हमारा एक ग्रुप बना है, उसमें जैसे कोई एक मैसेज आता है तो जो इनकी MX की LA ब्रांच के उमर सुखैरा हैं वो फौरन उसको रिप्लाई करते हैं। तो ये इनकी एफिशिएंसी की मिसाल है और मैं और मेरे हस्बैंड तो बहुत मुतमईन हैं और हम इनके लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार इनके कारोबार में बरकत दे। और देखिए, सीइंग इज़ बिलीविंग, सुनी सुनाई बात नहीं है, हम तो इससे गुजर रहे हैं। अब इंशाल्लाह कल इन्होंने हमें बता दिया कि आप फजर के बाद नाश्ता करते ही 6:30 आप लॉबी में सामान ले आएँ, हमारी गाड़ी आपको पिक करने पहुंच जाएगी। तो इससे अच्छी क्या बात है कि हमें कोई फिक्र ही नहीं कि हमने किस तरह जाना है मक्का, क्यों कर जाना है, वहाँ जाके क्या करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी सारी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह पाक इनको खुश रखे और शादो आबाद रखे। और मैं चाहती हूँ कि आप में से जो भी प्लान कर रहा है माँ बाप को भेजने के लिए इनके साथ भेजें। ट्रस्ट में बिल्कुल टेंशन फ्री है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ये मस्जिद शजरा है और इसके कई नाम है ना, और दूसरा क्या नाम है इसे? बेसिकली ये है मदीने की मीकात। अगर कोई बंदा मदीने से उम्रे की नीयत से बाहर निकलता हाँ, तो उसके ऊपर जो है वो लाजिम है कि वो यहाँ से एटलीस्ट यहाँ से एहराम जो है वो बांधे। बिल्कुल। या मदीने के अंदर से भी एहराम बांध सकते हैं, लेकिन ये लिमिट है। नमाज पढ़नी है, नियत करनी ये लिमिट है। बेसिकली हाँ। मीकात जो है वो एक बाउंड्री है सिंध में। ठीक है। तो ये मीकात है, लिमिट है मदीना की। ठीक है। इसका नाम जो है वो मस्जिद जुल हुदैफा भी है। हाँ। और इसे जो है वो मस्जिद शजरा भी कहते हैं और मस्जिद बियारी अली भी कहते हैं।
बीर अली, अच्छा। बीर अली भी जो है वो और ये कंस्ट्रक्शन हो रही है ना ये बाहर? एग्जैक्टली, ये भी सारा इसको जो है वो रेनोवेट कर रहे हैं इस वक्त। जो है वो सिर्फ ये एक मेन गेट जो है, ये इसका मेन गेट है, अच्छा। और यही सिर्फ अपना इन्होंने ओपन किया हुआ है। और ये सारी जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ये पॉसिबल है कि हज के लिए जब तक हो मजीद जाए। ये लोग बड़ा कर रहे हैं, तो इस वजह से। चल, शुक्रिया। वापस ठीक है, बस ये लगेज आ जाए तो मेरा बैग भी आपके लगेज में मेरा डाल दीजिए। इतना बड़ा है और इतना ज़्यादा खाना है कि मेरा तो देख के पेट भर गया। बहुत साफ सुथरा, बहुत अच्छा। Oh my God. पैनकेक बनाए फ्रेश आपके मज़े का। मैं ज़रा इसलिए बेटी कमरे में बैठूं तो दिल चाहता है इस कोने में बैठ के बस हरम की ज़ियारत करते रहो। खूबसूरत खूबसूरत खाने का। और हम 27th फ्लोर पे, और ये देखें ये देखिए कितनी मेन जगह है, पुराना जगह है, और
असल में ना हरम के 3 गेट हैं, एक 88 इधर सामने, बट ये कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो जो मेन है ना 79 शाह अब्दुल अजीज, वो इधर है, ये कुछ होता है, इतनी सर भी नहीं ऊपर जा रहा देखने के लिए पूरी। ये है गेट 79 और वेस्ट, ये देखिए कितना खूबसूरत ये मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मैं हर जगह चाह रही हूँ कि मुझे एस्केलेटर्स मिल जाए, मुझे न सीढ़ी चढ़नी पड़े और न कुछ हो। 84 है ये, और ये जो है 70 इस पॉइंट को देखें, बिल्कुल वो टॉप पे, इसके बैक साइड पे ऐसे zigzag से मैदान अरफात जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अरफात स्टार्ट है, ये येलो कलर का जो बोर्ड है इसके अंदर से मैदान अरफात स्टार्ट होता है। और जिस बंदे ने आ गया जिस बंदे ने जो है ना हज पढ़ना है उसको इस जगह से अंदर होना पड़ेगा। यहाँ से अंदर होगा तो उसका हज पढ़ा जाएगा, अगर इस बाउंड्री से बाहर होगा तो उसका हज नहीं पढ़ा जाएगा। और ये बाउंड्री आज की नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की लगी हुई है। इस वजह से है अरफात के मैदान में हज का खुतबा सुनना जो है वो वाजिब है। अब हज जो है वो फर्ज है, फर्ज के बाद आगे वाजिबात है। जो वाजिबात आप पूरे करोगे तो आपका हज होगा। जो सबसे अहम हज का रुकन है वो है अरफात के मैदान में खुतबा सुनना। खुतबा सुनना वो वाजिब है। अब वो खुतबा आप रेडियो में भी सुन सकते हैं, लेकिन अरफात के मैदान के अंदर। अब वो खुतबा रेडियो में भी आप सुन सकते हैं, वो खुतबा आप मस्जिद में बैठ के भी सुन सकते हैं। मस्जिद का जो दरवाजा होता है वो सुबह तकरीबन 8 से 9 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है। फिर लोग बाहर मैदान में भी होते हैं, फिर उसके बाद लोग अपने अपने कैंपों। लेकिन इसके बाद जब आपको मैं मुजल्फा की तरफ लेके जाऊंगा उसका मैं आपको बताऊंगा असल जो इम्तिहान है अल्लाह पाक का, वो रात का इम्तिहान वो आ जाता है। वो टेस्ट है आपका, उसमें जो है ना आपको खुले आसमान के नीचे एग्जैक्टली। तो ये सारे हेमे लगाए हुए इन्होंने। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का खुतबा दिया था जबले रहमा पे खड़े होके। साइड पे आपको वॉल नजर आ रही है, ये वॉल नहीं है, ये नहर है, ये नहर जुबैदा इसका नाम है। ये ड्राई हो गई है? जी हाँ, ये ड्राई अब हो गई है। ये नहर जुबैदा ये मिस्र की एक थी, एक शहजादी थी जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में उनको नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि अरफात, मिना और मुजल्फा में पानी की किल्लत है। तो उसने ये नहर बनवाई थी जिसका नाम नहर जुबैदा रखा गया, और ये नहर मिस्र से आई थी, जिसका अभी जो है ये अंदर बाकायदा म्यूजियम वगैरह बना रहे हैं। ये भी इंशाल्लाह अनकरीब ये ओपन हो जाएगा। ये आपके अंदर ये नहर जुबैदा के नाम से ये म्यूजियम भी होगा। तो ये जो बन रहा है, जी हाँ, ये पूरी ये जो अच्छा ये बाउंड्री अभी चल रही है, सारी बाउंड्री जो है ये चल रही है। ये इसके अंदर साइड जो है ना ये नहर चल रही है, ठीक है। अब ये नहर चल रही है, ये यहाँ पे अरफात में, मुजल्फा में और मिना में जमरात तक ये नहर गई थी, जो मिस्र से वो खींच कर लेकर आई थी उस वक्त में। मिस्र से लेकर आई? जी, मिस्र से ये नहर जो है ना ये लेकर आई थी।
وہاں سے کھینچ کے وہ یہاں تک لے کے آئی تھی. پانی وہاں سے آیا تھا اس وقت, پانی وہاں تک, کیونکہ یہاں پہ پانی کی قلت تھی جس کی وجہ سے یہ نہر آئی تھی. یہ مسجد مشعر الحرم ہے. یہ صرف جو ہے 3 دن کے لیے اپنا 3 نمازوں کے لیے کھلتی ہے, مغرب, عشاء اور فجر کا. اور اس کے بعد جو کنکریاں آپ نے اٹھانی ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے مزدلفہ سے ہی آپ نے اٹھانی ہوتی ہیں. یہاں سے چن کے رکھتے ہیں اپنے پاس. یہاں سے جو ہے نا کنکریاں اٹھانی ہوتی ہیں. اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے, یہ راستہ جاتا ہے سیدھا اوپر غار حرا کو. پرانا جو راستہ تھا وہ پرانا راستہ یہاں سے نیچے سے اوپر جاتا تھا. اب انہوں نے نیا راستہ جو ہے وہ اس سائڈ سے بنایا ہے. جو اوپر جو جانے کا ہے ڈسٹینس ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ آپ کو پیدل واک کرنا پڑتا ہے. اور بالکل اگر آپ ٹاپ دیکھیں اس کا تو یہ ذرا یہ ذرا یہاں پہ یہ ہے اس کا ٹاپ. یہ اس کا جو ہے نا یہ ٹاپ ہے. یہاں پہ یہ غار بنی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے نا غار حرا یہاں پہ کہتے ہیں. اور وہ بالکل ایک جانماز کی جگہ اور اوپر آرسی ہے. جہاں پہ پہلی وہی نازل ہوئی تھی, اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ وہ ایک بار ان کے لیے کھانا لے کر یہاں سے اوپر جا رہی تھی تو اللہ پاک نے کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ پاک نے فوراً جبرائیل السلام کو بھیجا. اللہ کے نبی اوپر عبادت کر رہے تھے اور کہا کہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے. جب وہ آگے پہنچے تو سب سے پہلے اس کو میرا سلام کہنا. اور جبرائیل السلام نے کہا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں. جب وہ پہنچے تو ان کو میرا بھی سلام کہنا. یہ ایک واقعہ جو غار حرا کا تھا. اسی طرح سے خدیجہ جب وہاں پہ پہنچی تو اللہ کے نبی نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا. اور اسی طرح جبرائیل السلام نے بھی آپ کو سلام عرض کیا. یہ اس راستے سے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر غار حرا میں جایا کرتی. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ تو آپ شکل ہے, پہلے تو اور زیادہ جی بالکل سخت قسم کی پہاڑی ہوگی, گرمی, دھوپ اور یہ پتھر. ہاں جی قاسم, میں آپ کے ساتھ اتنی دیر سے ٹائم گزار رہی ہوں. آپ کی بڑی اچھی انفارمیشن ہے آپ کے پاس. تو آپ کی ان کی ایم ایکس ٹریولز کے ساتھ آپ کا کیا جاب اسائنمنٹ ہے آپ کی؟ الحمدللہ میں پچھلے تقریباً 1.5 سے 2 سال سے میں ایمس ٹریول کے ساتھ ہوں. اور ایمس ٹریول جو ہے میں ٹریولنگ کا جتنا بھی ہے وہ سارا میں مینیج کرتا ہوں یہاں پہ مدینہ مکہ میں. مدینہ میں ہمارے شعیب بھائی ہیں, وہ ہوٹلز اور وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. مکہ میں آصف بھائی ہیں. تو میں یہ ٹرانسپورٹ کا جتنا بھی ہے یہ سارا میں ارینج کرتا ہوں, مینیج کرتا ہوں. اور اس کے بعد ہمارے ڈرائیورز ہیں, ایمس ٹریول کی طرف سے ڈرائیورز ہم نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں مکہ میں مدینہ میں. ہمارا جو سب سے فرسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کلائنٹ کو ہیپی رکھنا ہے. کلائنٹ کو ہم نے اچھی ٹرانسپورٹ دینی ہے. میں گواہ ہوں اس کی کہ میں بہت امپریس ہوں آپ کی ساری نالج سے, ماشاء اللہ. ہمارا جو سب سے پہلے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے نا کلائنٹ کو ہیپی رکھنا ہے اور اس کے لیے ان کو اچھی سے اچھی ٹرانسپورٹ دینی ہے اور اچھی سے اچھی ان کو زیارات کروانی ہے. اور زیارات میں ہم باقاعدہ مکہ میں آصف بھائی ساتھ جاتے ہیں, مدینہ میں شعیب بھائی ساتھ ہوتے ہیں, ڈرائیورز بھی ہوتے ہیں ساتھ, گائیڈر بھی ہوتے ہیں. اور ہم سب سے مین جو ہوتا ہے کہ بھائی کلائنٹ کو ہیپی رکھنا. تو یہ ہمارا ایمس ٹریول کا حج اینڈ عمرہ ٹریول ہمارا ہے. بہت زیادہ اچھا ہے ان کا. اور واقعی ہم تو دیکھ رہے ہیں, ہم جدہ سے مدینہ گئے, مدینہ سے مکہ آئے, کہ پوری ٹیم جو ہے بہت اچھی ہے. اللہ میاں آپ لوگوں کو بہت کامیابی. اس وقت 11 سے بھی زیادہ کا ٹائم ہے, چونکہ آج ہم نے عمرہ کیا ہے, بہت عشاء کے بعد واپس آئے تو تھکن کا بہت برا حال ہے. تو یہاں سے میرے کمرے سے دل نہیں چاہ رہا سونے کو. یہ دیکھیں خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے اور روشنیوں کا شہر, کیا خوبصورت. السلام علیکم. آج ہمارا چند گھنٹوں کے بعد ہماری فلائٹ ہے اور واپسی کا سفر ہے. بہت دل اداس ہے, اتنے اچھے دن گزرے اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جلد از جلد دوبارہ یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہتی تھی کہ اندر سے ہی خانہ کعبہ کے ساتھ قریب کہیں وہاں سے آپ سے بات کروں, لیکن اتنا رش
इतना रश है कि कान बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही. जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान की हिम्मत कम होती है, ताकत कम होती जाती है. मैं बहुत मर्तबा उम्रा कर चुकी हूँ, हज की भी सादत हासिल कर चुकी हूँ. तो मैं भी अपने आप से सवाल कर रही थी कि पहले जो मैंने इतने उम्रे किए और अब इसमें क्या फर्क है. मैं बहुत मुतमईन हूँ, मैं इतनी थकी भी नहीं और परेशान भी नहीं हूँ. तो मैंने खुद अपने आप को ये जवाब दिया कि इस दफा मैं करीब तरीन होटल्स में ठहरी. मुझे ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई फिक्र नहीं थी. मैंने ज़ियारात भी इतनी अच्छी की और मुतमईन बेफिक्र होकर मैंने ये इबादत की. तो इसका सब जो है ये मैं समझती हूँ इसकी जजा जो है और सब MX ट्रेवल्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी सहूलतें दी. उनके ज़ियारात पे उनके गाइड, उनके जो टीम है, असल में जो उनकी टीम है बहुत परफेक्ट है. चाहे गाड़ी चला रहा है बंदा, उसको सारी हिस्ट्री पता है और गाइड को तो पता ही है. और आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो पहले आपने कभी नहीं हासिल की. तो बहुत वेल ऑर्गेनाइज टीम है और बहुत बाखलाक टीम है. और क्रेडिट मैं तो हमेशा उमर सुखैरा को देती हूँ कि उन्होंने हमें लम्हे लम्हे में व्हाट्सएप ग्रुप में बाखबर रखा, हमारी खैरियत पूछते रहे. तो मैं उनके लिए भी बहुत दुआ गो हूँ. और परवरदिगार हमारी इबादत को कबूल करे और जो हमें इसका सवाब मिले उसके अंदर मैं MX ट्रेवल्स को भी शामिल करना चाहती हूँ. अल्लाह पाक इन्हें कहते हैं ना मजीद ग्रो करे इनको. और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये हज पे भी लेकर जा रहे हैं. और आज जब मैं मिना और अरफात ये हमें लेकर गए तो बहुत ही इन्होंने तफसील से बताया कि वो कितना जो भी हो, कोई अपने बुजुर्ग को भेजना चाहे तो वो बहुत सहूलतें फराहम करेंगे. तो फिर इंशाल्लाह बस दुआ करें हम भी खैरियत से घर पहुंचे अपने. और फिर आप सबके लिए मैं दुआ करूं कि आप बार बार इधर आए और ज़ियारत सबको नसीब. शुक्रिया.